اس میں کیا کیا ہے کہ بھائی انکروچرز کون ہے, گریبرز کون ہے وقف لینڈز کے, میں آپ کو یہ سرکولرز دوں گا, اس کا جائزہ لیا جائے, کیا ایکشن لینا ہے ان کو ان کی طرف سے. اب جیسا ہے کہ بھائی وقف آفس سے کچھ لوگ اوور شوٹ کر رہے ہیں لیز سے, وہ ایک الگ بات ہوئی. ڈائریکٹلی جیسا کہ کسی پرائیویٹ پارٹی میں, پرائیویٹ پراپرٹی میں جو گھس رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ لینڈ ہو, پرائیویٹ پرسن کا لینڈ ہو, تو وقف ایکٹ بھی اب اپلیکیبل ہوگا اس کو, اور جنرل لا آئی پی سی بھی ہوگا, سی آر پی سی بھی ہوگا, لینڈ گریبنگ ایکٹ بھی اس کو اپلائی ہوگا. تو میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی گورنمنٹ جی اوز ہیں, اور یہ کلیکٹر جو ہے ایوری منتھ آپ کنوین کریں میٹنگ کو, ٹاسک فورس کمیٹی, دیکھیں کہ بھائی کیا کیا قبضہ ہو رہا ہے, کیا کیا ایکشن لینا ہے. ایک اسٹیٹس رپورٹ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں آپ ایوری 3rd آف نیکسٹ منتھ. محکمہ اقلیتی بہبود کے کمشنر نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے کہ انعام جائیداد ایکٹ میں سن 1994 کی ترمیم کے باوجود نجی رجسٹریشن کی برخاستگی کے احکامات پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے. مائنارٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں سرکاری افسروں کو سخت ہدایتیں جاری کی گئی ہیں اور انعامی زمینوں کی واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ای ٹی وی نیوز, حیدرآباد. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی, پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی, پپو نے پی او پی, وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, دیواریں بول اٹھیں گی. اپنائیے میلاس اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا اتر پردیش کے کاکوری میں واقع خانقاہ کاظمیہ قلندریہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدہ بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ کو دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بریک کے بعد خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور اب کچھ بین الاقوامی خبریں. صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں کیے گئے 2 خودکش حملوں میں کم از کم 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے. یہ حملہ دارالحکومت کے مشہور ہوٹل جزیرہ کو نشانہ بنا کر کیا گیا. پولیس نے بتایا کہ کار پر سوار 2 افراد نے ہوٹل میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی تو وہاں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکا. اسی دوران کار دھماکے سے اڑ گئی. دھماکے کے بعد سیکیورٹی اہلکار اور راہگیر دھماکے کے مقام پر جمع ہو ہی رہے تھے کہ وہاں ایک اور دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ہلاکتوں میں اضافہ ہوا. مشرقی افریقی ملک صومالیہ کے ہمسایہ ملک کینیا میں بھی آج بم دھماکہ ہوا. اس دھماکے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے ہیں. براعظم افریقہ کے جنوب مشرقی خطے میں واقع ملک کینیا کے ساحلی شہر ممباسا میں ایک بم دھماکہ ہوا. یہ بم حملہ ممباسا شہر کے دیانی علاقے میں ایک بار پر ہوا. کینیا کے حکام کے مطابق دھماکہ دستی بم کا تھا لیکن یہ بم کافی طاقتور تھا. اس دھماکے میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. We have very bad feelings because that is one of my bars I often spend some drinks in and we are really sorry that that happened. But I think such things happens in whole the world, not only in this place. I don't know why they do that. مارٹن ہومز نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر روز تندوری بار جایا کرتا تھا لیکن اتفاق سے دھماکے کے روز وہ بار نہیں گیا. So also yesterday it was about 1 a.m. I want to spend some drinks here and I'm now really glad about not to do that. کینیا میں کوالے ٹورزم کمپنی کے ایگزیکٹو سیکرٹری نے دھماکے سے کینیا کی سیاحت پر منفی اثرات پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. Well, Tandoori has been a major
spot for both domestic and international revelers. It's one of the places where tourists come out in the evening and enjoy themselves. So the impact is going to be felt, obviously. دھماکہ کس نے کیا ابھی اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے. پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے. حکام کے مطابق دھماکہ ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے کیا اور جائے وقوع سے فوراً فرار ہو گئے. 2011 میں کینیا کی حکومت کی جانب سے القاعدہ کے خلاف فوج صومالیہ بھیجنے کے بعد سے کینیا میں بھی اس قسم کے حملے شروع ہوئے. ستمبر 2013 میں کینیا میں ایک مال پر ہوئے بم دھماکے میں کم از کم 67 افراد ہلاک ہوئے تھے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو دل کا دورہ پڑنے کے سبب آج عدالت نے ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عدالت نے مشرف کے خلاف مقدمے کی اگلی سماعت 6 جنوری کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پرویز مشرف پر ملک سے غداری کا مقدمہ درج ہے اور اس کی سماعت اسلام آباد کی ایک خصوصی عدالت میں ہو رہی ہے. خیال رہے کہ پرویز مشرف آج عدالت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں دل کا دورہ پڑا. آنن فانن انہیں فوجی اسپتال لے جایا گیا. فی الحال ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے. مشرف کل بھی عدالت میں پیش نہیں ہو سکے تھے. تب عدالت نے کہا تھا کہ 2 جنوری کو مشرف کو کسی بھی حال میں عدالت میں حاضر ہونا ہوگا ورنہ ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو دل کا دورہ پڑنے کے سبب عدالت نے ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عدالت نے مشرف کے خلاف مقدمے کی اگلی سماعت 6 جنوری کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پرویز مشرف پر ملک سے غداری کے خلاف مقدمہ درج ہے اور اس کی سماعت اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں ہو رہی ہے. خیال رہے کہ پرویز مشرف عدالت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں دل کا دورہ پڑا. آنن فانن انہیں فوجی اسپتال لے جایا گیا. فی الحال ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے. مشرف بدھ کے روز بھی عدالت میں پیش نہیں ہو سکے تھے. تب عدالت نے کہا تھا کہ 2 جنوری کو مشرف کو کسی بھی حال میں عدالت میں حاضر ہونا ہوگا ورنہ ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. آئین توڑنے کے الزام میں ملک سے غداری کے کیس میں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو جمعرات کے دن خصوصی عدالت میں پیش ہونا تھا. تاہم مشرف کے وکیل کے مطابق جب مشرف پیشی کے لیے عدالت جا رہے تھے انہوں نے راستے میں سینے میں تکلیف کی شکایت کی. انہیں فوری راولپنڈی کے ملٹری اسپتال آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں شریک کیا گیا. غداری کے مقدمے میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کی عدالت میں پیشی کے لیے صبح 11:30 کا وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ بصورت دیگر عدالت ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کرے گی. ادھر سماعت کے دوران خصوصی عدالت کے سربراہ نے وکلاء سے مشرف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مشرف کی صحت کے تعلق سے عدالت کو آگاہ کیا. دوسری جانب قانونی کارروائی کی تکمیل کے لیے وکلاء نے مشرف کے عدالت میں حاضر نہ ہونے کی صورت میں ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنے کی اپیل کی. تاہم مشرف کے وکیل خالد ارنجھا کا کہنا ہے کہ چونکہ ان کے موکل عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عدالت حاضر ہونے جا رہے تھے لہٰذا ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری نہ کیا جائے. اس صورتحال میں مشرف پر شک بھی کیا جا رہا ہے. مشرف کے ایک وکیل احمد رضا قصوری نے عدالت میں سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف اگر عدالتی کارروائی سے گھبراتے تو وہ پاکستان واپس ہی نہیں آتے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. ناظرین اب دیکھتے ہیں وسپرز ان دا کوریڈورز. قانونی گلیاروں میں جاری تبصروں کے مطابق سپریم کورٹ کالجیم کی میٹنگ اس ہفتے یا اگلے ہفتے ہو سکتی ہے. کالجیم سپریم کورٹ کے جج اور ہائی کورٹ کے دیگر ججوں کے ناموں کو منظوری دے سکتی ہے. 1980 بیچ کرناٹک کیڈر کے VP والیگر کو سیکریٹری کا درجہ دے کر ہڈکو کا CMD بنایا جا سکتا ہے. منی پور تریپورہ کیڈر 1980 بیچ کے IAS افسر کمار آلوک کا مرکزی وزارت داخلہ میں مشترکہ سیکریٹری کے طور پر تقرر کیا گیا ہے. محترمہ AK برار نے IRCTC میں ٹورزم ڈائریکٹر اینڈ مارکیٹنگ کا عہدہ سنبھال لیا ہے. ڈھیل کے CMD BP راؤ کی میعاد میں اضافے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں. پیر کے روز وزیر اعظم کے ذریعے تشکیل دیے گئے پینل نے راؤ کو 2 سال کا ریٹائرمنٹ ایکسٹینشن دینے پر غور کیا اور راؤ کو ایکسٹینشن دینے پر سہمت ہوئے. راؤ 31 دسمبر کو سبکدوش ہونے والے تھے. 1983 بیچ UP کیڈر کے IPS اوم پرکاش سنگھ مرکز میں ADG کے عہدے کا چارج لے سکتے ہیں.
बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों के मंजूर शुदा 75 ओहदों में से 18 खाली हैं। खाली पड़े ओहदों में से 4 ओहदे नामजद जजों के और 14 ओहदे एडिशनल जजों के हैं। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा पिछले दिनों भटकी हुई दिखलाई दी। उसने अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो निकाला और सुशासन की बात की। अब जरा सोचे, क्या आज की युवा पीढ़ी वाजपेयी से कनेक्ट होती है? फिर यदि वाजपेयी महानायक होते तो क्या सन 2004 में भाजपा हारती? अब वक्त युवाओं का है, सोशल मीडिया का है, दुनिया के पैमाने में दमदार लीडरशिप की चाहना का है। वाजपेयी मध्यमार्गी नेहरूवादी राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि थे। यदि उनकी राह पर नरेंद्र मोदी चले होते तो उनकी इमेज ढीले ढाले नेता वाली होती। नरेंद्र मोदी यदि युवाओं की पुकार बने हैं तो वजह नरेंद्र मोदी की खुद की शख्सियत है। नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी केशुभाई आडवाणी के अंदाज से अलग राजनीति की। राजधर्म की बजाय उन्होंने राष्ट्र धर्म के हुंकारे पर मर्द लीडरशिप बताई। सचमुच ये संभव ही नहीं है जो लोग नरेंद्र मोदी में वाजपेयी का चेहरा देखें। इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ वाजपेयी का फोटो भाजपा का भटकाव है। अरविंद केजरीवाल की चुनौती के आगे सुशासन और वाजपेयी की बात हड़बड़ी का फैसला है। नरेंद्र मोदी विकास सुशासन की चाहे जितनी बात करे, उनकी कोर पूंजी मर्द लीडरशिप और हिंदूवादी चेहरा है। आतंकवाद, पाकिस्तान, धर्मनिरपेक्षता जैसी बातों में नरेंद्र मोदी की जो पोजीशनिंग रही है वही उनकी लोकप्रियता का आधार है। क्या नहीं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। लोकसभा इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल भी एक मोर्चा बनाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले लेफ्ट पार्टियां एक तीसरे मोर्चे की पहल कर रही हैं और ममता बनर्जी चौथा या वफाकी मोर्चा बना रही हैं। इसी तर्ज पर केजरीवाल, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव एक पांचवा मोर्चा बनाने की तैयारी में है, जिसकी थीम बदनवानी मुखालफत की होगी। आपके लीडर ने इस मोर्चे के लिए पार्टियों से तबादले ख्याल शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमान शीतकार संगठन को लग रहा है कि बीजेपी के बजाय आपका मोर्चा बेहतर होगा, चुनांचा वो आपके लीडर से बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब में जब कांग्रेस ने मनप्रीत बादल को एक से ज्यादा लोकसभा सीट देने से इनकार किया तो उनको भी लग रहा है कि पंजाब पीपुल्स पार्टी का बेहतर तालमेल आपसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन काफी दिन से केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल ने जब सलमान खुर्शीद को चैलेंज कर फर्रुखाबाद में रैली का इनकाद किया था, तब भारतीय किसान यूनियन
के लोग उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां पर गए थे। चुनांचा उनके साथ इंतखाबी तालमेल हो सकता है। गुजरात में कानू कलसारिया आप में शामिल हुए हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी की मुखालफत में जो लोग केशुभाई पटेल के साथ गए थे वो सभी लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। मरकज की यूपीए हुकूमत और कांग्रेस पार्टी कुछ हैरान कर देने वाले फैसले कर रही है। 4 रियासतों के इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी दोनों ने माना कि महंगाई से पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इन नतीजों के बाद पहली बार राहुल गांधी खुले तौर से महंगाई पर बोले और उन्होंने इसे रोकने के लिए ज़राई मसनूआत की मार्केटिंग के ज़ाब्ते में बदलाव का मशवरा दिया ताकि खाने पीने की चीजों की बढ़ती हुई महंगाई को रोका जा सके। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद हुकूमत ऐसे फैसले कर रही है जिनसे महंगाई मजीद बढ़ेगी। कांग्रेस के ही कई रहनुमा इस बात से हैरान है कि आखिर अब पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कीमत बढ़ाने की क्या वजह है। लोकसभा इंतखाबात का नोटिफिकेशन 2 महीने बाद जारी होने वाला है। ऐसे में किसी भी चीज की कीमत बढ़ाने का फैसला अब रुक जाना चाहिए, लेकिन उल्टे हुकूमत ने गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में एक बार में 220 रुपए का इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता 1 महीने में हुकूमत इसकी कीमत 280 रुपए बढ़ा चुकी है। इससे होटलों में खाने पीने की चीजें यकीनी तौर से महंगी होंगी। इससे कबल 4 रियासतों के इंतखाबी नतीजों के फौरन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया गया और सबको हैरान करते हुए LPG की कीमतों में 4.5 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया। कांग्रेस के कई लीडरान को लग रहा है कि जो लोग हुकूमत में शामिल हैं वो अगले इलेक्शन में पूरी तरह से कांग्रेस का भट्टा बैठा देने में लगे हैं। अगले इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी में कुछ बातों पर रजामंदी बन गई है। कांग्रेस जराये का कहना है कि पार्टी में बिल्कुल आला सतह पर कुछ मामलात को लेकर तबादला ख्याल हुआ है और उन पर एक राय बन चुकी है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस आला क़यादत में इस बात पर रजामंदी बनी है कि इस बार मुजरिमाना शबीह वाले बदउनवानी के इल्जामात से घिरे और दाखिली लीडरान को पार्टी लोकसभा के टिकट नहीं देगी। ऐसे ही जहां तक मुमकिन होगा मुलजिम लीडरान के साथ पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद भी मुलतवी रखेगी। इसके इशारे पार्टी की जानिब से दिए जाने लगे हैं। खानदान को लेकर भी कुछ मसाइल पर रजामंदी बनने की खबर है। ये वाज़ेह तौर पर कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी की जानिब से राजा संजय सिंह और आप की जानिब से कुमार विश्वास के इंतखाब लड़ने के कयास के बीच पार्टी के रहनुमा राहुल पर दबाव डाल रहे थे कि वो जुनूबी हिंदुस्तान में भी कहीं से इलेक्शन लड़े। कांग्रेसी रहनुमा मेढक और बेलारी सीट बता रहे थे जहाँ से इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी इलेक्शन लड़ चुके हैं। हालांकि ये तय हुआ है कि राहुल सिर्फ अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे ही कांग्रेस के भरोसेमंद जराये का कहना है कि इस बार प्रियंका गांधी सरगर्म सियासत में नहीं उतरेंगी और इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। राहुल गांधी के सख्त रुख के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की जांच रिपोर्ट को जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया है, लेकिन इस बात का कोई इशारा नहीं दिया है कि जिन रहनुमाओं पर इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट खारिज करने के फैसले से राहुल गांधी ने असहमति जाहिर की तो रियासती हुकूमत ने काबीना का इजलास तलब कर रिपोर्ट के एक हिस्से को मंजूर कर लिया। उसके बाद वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने 2 रुकनी कमीशन की तरफ से उठाए गए कुछ मुद्दों को मंजूर कर लिया है और उस पर आगे की कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। बताया जा रहा है कि ये कमेटी अलग से एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करेगी। ज़ेरे गौर की आदर्श बदउनवानी मामले की जांच के लिए बने अदालती कमीशन ने रियासत के 5 साबिक वज़राए आला के किरदार पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की हिमायत से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। आपके 28 रुकन असेंबली के अलावा कांग्रेस के 7 जनता दल यू के इकलौते रुकन असेंबली और 1 आजाद रुकन असेंबली ने एतमाद का वोट हासिल करने के लिए हुकूमत की हिमायत की, जबकि बीजेपी और अकाली दल के अराकीन असेंबली ने तजवीज की मुखालफत की। इससे कबल एतमाद के वोट के लिए हुई बहस के आखिर में केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि वो किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने हुकूमत साजी में अपने किसी भी उसूल या वादे से कोई समझौता नहीं किया है। बदउनवानी के मामले पर बोलते हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बदउनवानी के मामले में मुलविस किसी भी मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा। आज सुबह एतमाद के वोट की तजवीज पेश करते हुए आपके सबसे सीनियर वजीर मनीष सिसोदिया ने सभी पार्टियों से अपील करते हुए कहा था कि वो सियासत से ऊपर उठकर दिल्ली की आवाम के मफाद में बनी मुतबादिल हुकूमत की हिमायत करें। उन्होंने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया, बल्कि उसे दिल्ली की आवाम ने हुकूमत साजी के लिए अखलाकी हिमायत दी थी।
दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को हिमायत और नसीहत दोनों दी। कांग्रेस के रियासती सदर अरविंदर सिंह लवली ने हुकूमत की जानिब से पेश की गई एतमाद के वोट की तजवीज पर बहस के दौरान कहा कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी की हुकूमत को हिमायत दी थी और वो उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिमायत जारी रहेगी, लेकिन आपके रहनुमाओं को अहम फैसले करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लवली ने कहा कि आपकी हुकूमत जब तक दिल्ली की आवाम के मफाद में काम करती रहेगी तब तक उसे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने मुफ्त पानी की स्कीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे फैसले सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का फायदा बहुत कम लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोबारा इंतखाबात नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने आपको हिमायत दी। आम आदमी पार्टी की हुकूमत की जानिब से दिल्ली असेंबली में पेश की गई एतमाद के वोट की तजवीज की मुखालफत करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कांग्रेस की हिमायत लेने के लिए वजीर आला अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने लंबे खिताब में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की क्या जरूरत थी। बीजेपी की जानिब से वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे हर्षवर्धन ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके रहनुमा कांग्रेस को सबसे बदउनवान पार्टी बताते रहे हैं और आखिर में उसी के साथ हुकूमत साजी की। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने पूछा कि केजरीवाल बताएं कि कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत साजी की उनकी क्या मजबूरी थी। उन्होंने गुज़िश्ता 5 दिन में केजरीवाल हुकूमत की जानिब से लिए गए कई फैसलों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 700 लीटर मुफ्त पानी देने की स्कीम का फायदा सिर्फ अमीर लोगों को होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कानूनी और चालू मीटर वाले घरों को ही सहूलत दी गई है। उन्होंने हलफ लेने आने के लिए मेट्रो के इस्तेमाल को नाटक करार देते हुए कहा कि केजरीवाल और उनके लोगों ने सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा किया। इसी बीच बीजेपी की जानिब से जगदीश मुखी ने स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चा दाखिल किया। जुमा की रोज स्पीकर के ओहदे के लिए वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत मुस्लिम रहनुमाओं के खिलाफ दायर इश्तियाल-अंगेज बयान के मामले वापस लेने पर गौर कर रही है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान इश्तियाल-अंगेज बयान के जरिए तशद्दुद भड़काने के मुलजिम मुस्लिम रहनुमाओं पर से मुकदमा वापस लेने की तैयारी चल रही है। इस मामले में रियासती हुकूमत के महकमा कानून ने जिला इंतजामिया को खत लिखा है और 31 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में हुई पंचायत के दौरान इश्तियाल-अंगेज बयान देने के मामले को वापस लेने के बारे में एक रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में मुलजिम बनाए गए मुस्लिम रहनुमाओं में बीएसपी रुकन पार्लियामेंट कदीर राणा, रुकन असेंबली नूर सलीम और मौलाना अलीम अहमद, कांग्रेस के रहनुमा सईदुज्जमा और उनके बेटे सलमान सईद के अलावा दीगर कई मुस्लिम रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। सईदुज्जमा और दीगर 3 लोगों को छोड़कर कदीर राणा समेत बाकी सभी मुलजिम जमानत पर छूटे हुए हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उत्तर प्रदेश के काकोरी में वाक़ खानकाह काज़मिया अलंगरिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की क्या है तारीखी अहमियत?
देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदा बुध की रात 8:30 बजे और जुमा को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। ऑल इंडिया रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर अरविंद केजरीवाल है, लेकिन हुकूमत हिंद के अफसरान को रुझान उनकी पार्टी की जानिब नहीं है। सरकारी अफसरान का रुझान बीजेपी की जानिब है। गुज़िश्ता दिनों साबिक दाखिला सेक्रेटरी RK सिंह और साबिक पेट्रोलियम सेक्रेटरी RS पांड्या बीजेपी में शामिल हुए और अब क्या अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान में मुस्तकिल नुमाइंदा रहे। हरदीप पुरी भी बीजेपी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के 3 साबिक IAS अफसरान ने बीजेपी के साथ जाने का इशारा किया है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी की जानिब से कारपोरेट से जुड़े पेशावरों का ज्यादा रुझान है। लाल बहादुर शास्त्री के पोते और एप्पल कंपनी से जुड़े रहे आदर्श शास्त्री और इन्फोसिस से इस्तीफा देने वाले उसके साबिक CEO V बालाकृष्णन ने आपका दामन थाम लिया है। रॉयल स्कॉटिश बैंक से जुड़ी मीरा सान्याल भी आपके साथ जुड़ने वाली हैं। मुंबई के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। मिलिंद देवड़ा के बाद संजय निरुपम दूसरे रुकने पार्लियामेंट हैं जिन्होंने खुले तौर से मोर्चा खोला है। हालांकि इन दोनों मेंबरान पार्लियामेंट ने 4.5 साल तक कुछ भी नहीं कहा। ताहम इंतखाबात नजदीक आने और आम आदमी पार्टी के बढ़ते असर और रसूख को देखकर कांग्रेसी अरकान की परेशानियां बढ़ी हैं। दिल्ली के बाद मुंबई को अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब जगह माना जा रहा है। बैंकर मीरा सान्याल पार्टी से जुड़ने वाली हैं। लाल बहादुर शास्त्री के मुंबई में रहने वाले पोते आदर्श शास्त्री आप ज्वाइन कर चुके हैं और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी के भी जुड़ने की बात हो रही है। अगर ऐसे रहनुमा आपके टिकट पर इलेक्शन में उतरेंगे तो कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट को बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने आम आदमी पार्टी वाली सियासत शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी है। वे जिस विचारधारा, जिन प्रतीकों और जिन तेवरों के प्रतिनिधि है, उसी कारण उनकी लोकप्रियता हुई। अब यदि भाजपा ने वाजपेयी आडवाणी के फोटो के साथ नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने की सोची है तो मतलब भाजपा में कंफ्यूजन है, चिंताएं हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी में भरोसा नहीं पैदा हो पा रहा है। जब उसने अगले लोकसभा इलेक्शन की क़यादत पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपी थी और बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी माना जाने लगा था, तब बीजेपी के रहनुमा और कारकुनान ज्यादा जोशो खरोश में थे। तभी 4 रियासतों में नरेंद्र मोदी ने जमकर मेहनत की। उनकी मेहनत का नतीजा था कि बीजेपी 3 रियासतों में कामयाब हुई और कांग्रेस का 4 रियासतों में सफाया हो गया। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाने और आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी का फतह का रथ रुक जाने के वाक़े से पार्टी लीजान का भरोसा हिला हुआ दिख रहा है। तभी गुज़िश्ता हफ्ते अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी ने अलग मुहिम शुरू की। पार्टी ने वाजपेयी की यौम पैदाइश को बेहतर नस्म नस्ब के दिन के तौर पर मनाया। पार्टी के तमाम वज़राए आला दिल्ली में यकजा हुए और एक तरह से वाजपेयी के बेहतर नस्म नस्ब के मॉडल को इलेक्शन में पेश करने की तैयारी दिखी। बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी के साथ साथ वाजपेयी का चेहरा भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी सोच किसी न किसी वजह से भटकी है। बीजेपी के इसी कश्मकश को समझकर मुखालिफ पार्टियों के लीडरान ने भी वाजपेयी बनाम मोदी की बहस चलाई है। अपोजिशन के रहनुमा ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी का चेहरा वाजपेयी की तरह नहीं है और इसलिए इत्तेहाद की सियासत के मौजूदा दौर में वो सबको तस्लीम नहीं होंगे। लेकिन सवाल है कि जब तक बीजेपी को सीटें नहीं आती थी या वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी थी, तब तक वाजपेयी को ही कौन तस्लीम करता था। तब तो वाजपेयी भी लाल कृष्ण आडवाणी की ही तरह अछूत थे। इसलिए ये हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली में एक नई पार्टी की मामूली कामयाबी और अपोजिशन जमातों के बिछाए जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। कांग्रेस के मौजूदा नस्म नस्क के खिलाफ अगर मुल्क भर में हवा बनी है तो उसमें नरेंद्र मोदी की तशहीर का बड़ा हाथ है और अगर बीजेपी मुतबादिल के तौर पर लोगों के दिलो दिमाग में बैठी है तो उसकी वजह भी मोदी की अपनी सियासत और अंदाज है। अगर बीजेपी के रहनुमा उसे
वाजपेयी के मोतदिल चेहरे और नेहरूवादी मुतवस्सित तबके की सियासत के साथ गठमट करना चाहते हैं तो पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस और दूसरी इलाकाई पार्टियों को नरेंद्र मोदी की फिक्र इस वजह से थी कि वो पुरतशद्दुद हिंदूवादी सोच की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान, दहशतगर्दी, माओ नवाज वगैरह के मसले पर उनका फैसला कुन नजरिया है।